Hello students, welcome to the Pioneer 360's video lectures. अगले लेक्चर में आप कुछ सीखने जा रहे हैं. सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू. Can be positive, where we say that the disorder is increasing, the entropy is increasing. Example, iodine solid becomes dissolved in a solution. So you can see that solid is having less entropy, and in solution the solid gets more entropy. So in such a case we can say delta S is positive. Another example is of delta S negative. How can delta S be negative? Let us take another example. In this case, imagine a reaction where 3 moles of a gas are converted into 2 moles of a liquid. So if you notice on the left side you have gas, and on the right side you have liquids. So gas has higher entropy, liquid have lower entropy, यानी entropy कम हो रही है. So if the entropy is decreasing, then we say that the delta S is negative. From disorder state to order state, entropy is decreasing. So we say that the delta S is negative. Please write the example of delta S negative. So you have to check on the left side and the right side. Mainly it has to do with the gases. Wherever there are more gases, the entropy will be more. So that is the clue. If the entropy is more, gases number of moles will be higher. And since on the right side you have only liquid, it is having lower entropy. So it is having a ordered state. And in this way you can say that the delta S will be negative. So delta S can be positive, delta S can be negative. Now you have to identify whether entropy is positive or negative. Chat box is open. You have to tell me whether entropy is delta S. Delta S. Entropy change. Please do the correction. Entropy change होना चाहिए question में. Identify whether entropy change is positive or negative. Start giving me the answer. Raj has given me the first answer. Ankita and Nikhil. Okay, Asifa, Zusha, Raj, Divesh, Priyanshu, Meghna, Vedant, Bhumika, Neha, Sumiksha. Sumiksha, you have not given the correct answer. Sania, Rohan, Shruti Patil, not the correct answer. आपको देखना है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. सो 2 स्टूडेंट्स, श्रुति पाटिल एंड वन मोर, श्रुति पाटिल एंड सुमिक्षा, प्लीज करेक्ट योर आंसर. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक मॉलिक्यूल है और राइट साइड पे 2 एटम्स है. एटम्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एटम, जहां संख्या ज्यादा होगी पार्टिकल्स की, एटम्स की या मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होगी तो रैंडमनेस ज्यादा होगा. सो बोथ गैसेस, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ एंट्रोपी ज्यादा है और यहाँ पे प्रोडक्ट में एंट्रोपी ज्यादा है, इसीलिए डेल्टा एस पॉजिटिव है. प्लीज लिख लो. प्लीज जिन्होंने गलत आंसर दिया था प्लीज लिखो, अंडरस्टैंड करो. ये लास्ट टाइम मैंने करवाया भी था. आई रिमेम्बर आई हैड डिस्कस दिस एग्जाम्पल लास्ट टाइम.
प्लीज बी अलर्ट एवरीवन, प्लीज बी अलर्ट, सब अलर्ट हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा एस पॉजिटिव या निगेटिव? ओनली 3 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड, अंकिता, निखिल एंड फातिमा। वेदांत गलत आंसर दे रहा है बेटा। वेदांत प्लीज अंडरस्टैंड करके आंसर दो। वेदांत, रोहन प्लीज गलत आंसर मत दो, समझ के आंसर दो। श्रुति पाटिल, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। यू वर प्रेजेंट लास्ट टाइम? Yes, so the answer for this question is very simple. You can see on the right side we have gas. राइट साइड पे गैस है, मतलब राइट साइड की एंट्रोपी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है। प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा रहेगी तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। सो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। सबने नोट कर लिया? सब लोग नोट किया फटाफट? सबने नोट किया? सबने नोट किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से किसकी ज्यादा रहेगी एंट्रोपी, NO गैस या N2O4 गैस। दोनों गैस है, आपको बताना है किसकी एंट्रोपी ज्यादा, किसकी एंट्रोपी ज्यादा रहेगी। क्या लगता है आपको? दोनों गैस है, दोनों के एक फॉर्मूला दिया हुआ है। एनी आइडिया व्हाट इट कैन बी? किसका ज्यादा रहेगा, NO का या N2O4 का? क्वेश्चन है NO का ज्यादा रहेगा या N2O4 का? सिद्रा एंड आसिफा एंड राइट। दुक्षा, अवेश, राइट आंसर है। द आंसर इज बोथ आर गैसेस बट नंबर ऑफ एटम इज मोर इन N2O4, इसीलिए नंबर ऑफ एटम ज्यादा रहने से डिसऑर्डर बढ़ जाता है। लोकल ट्रेन में अगर कम लोग जा रहे हैं तो कम डिसऑर्डर होगा, लोकल ट्रेन में ज्यादा पब्लिक घुसेगी, जैसे कल घुसी है, लोकल ट्रेन चालू हो गई तो डिसऑर्डर बढ़ गया। सो नंबर जितना ज्यादा होगा एटम्स का उतना डिसऑर्डर ज्यादा हो जाता है, इसीलिए डेल्टा एस पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वाज एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन। Now students, we are going to study the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics क्या कहता है देखो। Second law of thermodynamics कहता है in terms of entropy, the total entropy of the system and its surrounding increases। यानी हमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये देखने के लिए हमें ये लॉ को यूज करना है। प्लीज राइट डाउन दिस लॉ which is the second law of thermodynamics। जो लोग लेट आए, आपने एक टॉपिक मिस किया है। Try to come on time students। Total entropy of a system and its surrounding increases in a spontaneous process is known as the second law of thermodynamics। I will explain this of course। So once you have written this, give me a thumbs up। I am trying to tell you how entropy change is related to spontaneity of a process। ये एक spontaneous process है, ये एक ऐसा process है जो spontaneous process अपने आप होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम डिकम्पोज करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन इट्स ओन डिकम्पोजेस टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। नाउ दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड व्हाट डू यू सी? डेल्टा एस इज पॉजिटिव। Another reaction we take spontaneous where hydrogen gas plus oxygen gas allowed to combine। और अगर इन दोनों गैस को कंबाइन करने के लिए रखा जाए और ये दोनों गैसेस कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म वाटर,
ये भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें आप देखेंगे एंट्रोपी का क्या हो रहा है, इसमें आप देखेंगे एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर, रिएक्टेंट में गैसेस है, प्रोडक्ट में लिक्विड है, इसमें डेल्टा एस निगेटिव है। अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन से आपको क्या समझ में आया, इससे अपने को ये समझ में आया कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। So entropy of system is not giving any idea about spontaneity. Spontaneity के लिए आप इसको यूज मत करो। जैसे डेल्टा एच देख के हम नहीं बता सकते, वैसे ही एंट्रोपी सिस्टम डेल्टा एस सिस्टम बता के, डेल्टा एस सिस्टम देख के भी हम नहीं बता सकते। So this is another lesson we need to learn today. So entropy change of a system will not be able to help us to understand whether the process is spontaneous or not. But second law of thermodynamics कहता है, that for a spontaneous process, total entropy of a system and surrounding increases. So this is very, very important. Second law of thermodynamics, जो अभी मैंने आपको बताया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, इन दोनों की वैल्यू अगर बढ़ती है मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, it should be positive. So if the delta S of the system plus delta S of the surrounding increases, means if it is positive, then we say that the process is spontaneous. तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये बताने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा। सिर्फ डेल्टा एस सिस्टम का देख के मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं दोनों की वैल्यू अगर मुझे पता है, दोनों की वैल्यू देख के मैं बता सकता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर टुडेज एप्लीकेशन। आज हम ये करने वाले हैं, हमें प्रोसेस दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आपको बताना है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, और वो बताने के लिए आपको दो वैल्यूज की मदद लेनी है। एक है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और दूसरा है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अगर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग दोनों अगर मेरे पास है तो मैं बता सकता हूं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। Some things I want to clear about the delta S of system and surrounding. When I say system and surrounding, always remember whatever system loses, surrounding gains. So remember, only it is between system and surrounding. सिस्टम के लिए डेल्टा एस का फॉर्मूला मैं अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये आपको मैंने पिछली बार पढ़ाया है, इसका फॉर्मूला क्यू अपॉन टी। अब याद रखना ये है कि अगर सिस्टम हीट रिलीज करता है, सिस्टम अगर हीट रिलीज करता है तो सराउंडिंग हीट गेन करता है। अगर सिस्टम हीट रिलीज करता है तो सराउंडिंग हीट को गेन करता है। सराउंडिंग का जो डेल्टा एस है उसका फॉर्मूला में क्या लिखूंगा,
इसका भी फॉर्मूला Q अपॉन T है, लेकिन याद रखना इसके लिए Q जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी सिस्टम का है उसका अपोजिट रहेगा। सिस्टम ने अगर लूज किया है तो ये गेन करेगा, सिस्टम अगर लूज करेगा तो ये गेन करेगा, सिस्टम अगर गेन करेगा तो इसका मतलब सराउंडिंग ने लूज किया है, तो प्लस माइनस का अंतर रहेगा। It will be a difference of the sign, positive and negative. Are you with me? Are you with me? Are you with me? For example, विनायक बेटा लक्ष्य देना, इतना बताया तुमको मैंने बेटा, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो। अगर सिस्टम 50 किलो जूल हीट रिलीज करता है, अगर सिस्टम 50 किलो जूल हीट रिलीज करता है तो इसका मतलब सराउंडिंग ने वही 50 किलो जूल हीट को गेन किया है। सराउंडिंग के लिए Q की वैल्यू वही होगी, सिर्फ साइन बदल जाएगी, सिर्फ साइन बदल जाती है। साइन कन्वेंशन आपको मालूम है, अगर हीट आती है तो Q पॉजिटिव, अगर हीट आती है किसी में तो पॉजिटिव बोलते, Q इज +50। Q +50 का मतलब होता है 50 किलो आया, 50 किलो जूल हीट आया। माइनस का मतलब क्या होता है, Q डेल्टा H नहीं, Q की बात कर रहा हूं मैं, Q माइनस मतलब गया। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So let's move and see one of the question based on this question. Mathematically, delta S of system plus delta S of surrounding को हम एक नया नाम देंगे, delta S total। लिखो, ये लिखो आप, अभी हम नया शब्द यूज करेंगे, डेल्टा S टोटल। अभी टोटल क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों का टोटल, और ये टोटल वैल्यू हमें देखनी है। हमें किसी एक की वैल्यू देख के मालूम नहीं पड़ेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, लेकिन हमें इन दोनों का टोटल करेंगे ना, तो हम इन दोनों का टोटल अगर पॉजिटिव आएगा तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। यानी एंट्रोपी चेंज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डेल्टा एस टोटल। तो डेल्टा एस टोटल क्या है, टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों का प्लस कर दो, दोनों का प्लस कर दो। और ये डेल्टा एस टोटल, अगर ये डेल्टा एस टोटल, इसको और एक वर्ड है डेल्टा एस यूनिवर्स, अगर ये डेल्टा एस टोटल 0 से ज्यादा है तो इसका क्या मीनिंग है राहुल, व्हाट इज दिस मीनिंग? क्या पता चलता है तुमको, डेल्टा एस टोटल अगर 0 से ज्यादा रहेगा तो? नहीं बता रहे राहुल, निखिल अनम्यूट करके बताओ जल्दी, अनम्यूट करके बताओ जल्दी, माइक चालू कर। Spontaneous process. Yes, the process will be spontaneous. Very, very good. If the delta S total is less than 0, what does it mean? Less than 0. What does it mean? Non-spontaneous. Very good, Vedant. And can you also tell me what will happen if delta S total is 0? Yes, delta S total 0 रहेगा तो स्पॉन्टेनियस मतलब फॉरवर्ड होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब बैकवर्ड होता है। Yes, it is equilibrium. Equilibrium हो जाएगा, very good. So that's it student, this is very, very important. So try to understand what is the question first. क्वेश्चन में हमें पूछा है कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। मुझे ये तय करना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है।
इसके लिए मुझे रिएक्शन दिया है, इसका मुझे तय करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एस दिया है और डेल्टा एच दिया है। याद रखो, जिस रिएक्शन का डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया है मतलब ये सिस्टम का है, याद रखना ये दोनों भी सिस्टम के बारे में है। लेकिन सिस्टम की वैल्यू से मैं ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं बता सकता। मुझे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये बताने के लिए मेरे पास होना चाहिए डेल्टा एस टोटल, और डेल्टा एस टोटल जो होता है वो बनता है डेल्टा एस सिस्टम से, जो कि दिया हुआ है, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो देखो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा एस सिस्टम ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, सिर्फ सराउंडिंग का डेल्टा एस नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग मुझे फाइंड करना है, और डेल्टा एस सराउंडिंग का फाइंड करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी, कि डेल्टा एस सराउंडिंग में नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा मुझे डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला? अनम्यूट करके बोलो, एनीबॉडी, व्हाट इज फॉर्मूला डेल्टा एस? डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। डेल्टा एच अपॉन टी। ये मैंने दिया फॉर्मूला आपको? नहीं तो मैंने तो ये फॉर्मूला नहीं दिया आपको। Q upon T. हाँ फातिमा बोलो वापस, यू आर राइट, मैंने आपको फॉर्मूला दिया ही, Q अपॉन टी। गुड गुड, आई थिंक वही स्टूडेंट्स अटेंटिव है, ध्यान दे रहे हैं। मैंने डेल्टा एस का फॉर्मूला दिया है Q अपॉन टी, आई हैव गिवन दिस फॉर्मूला। कोई भी डेल्टा एस फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। सराउंडिंग का जो Q है वो क्या होगा? सराउंडिंग का Q जो होगा, सिस्टम का जो भी डेल्टा एच होगा ना, वही साइन माइनस करने का बस। तो याद रखो, यही फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय टी। Q की जगह पे मैं लिखूंगा, Q का मतलब लिखूंगा सराउंडिंग को Q वही मिलेगा जो डेल्टा एच खोएगा, माइनस डेल्टा एच को माइनस साइन लगा दो, सिस्टम का जो भी डेल्टा एच रहेगा उसको माइनस साइन लगा के लिखो, वो Q हो जाता है। तो सराउंडिंग का डेल्टा एस मेरे लिए ये होगा माइनस 238.6 डिवाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में करना है 298। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 238.6 डिवाइड बाय 298. So delta S of surrounding answer will be 0.8007 kilojoule. This is our delta S of surrounding. डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ऑलरेडी पता है मेरे पास, ऑलरेडी है, तो मैं डेल्टा एस टोटल फाइंड कर सकता हूं अभी। डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। डेल्टा एस कितना है? जूल्स में दिया है, उसको किलो जूल करना है तो किलो जूल कर दो, या इसको जूल्स में कर दो, बेटर रहेगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 800.7 जूल कर दो, इसको दोनों जूल में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सो डेल्टा एस सिस्टम का कितना दिया है? 36.7 जूल, प्लस सराउंडिंग का आया 800.7 जूल। सो द फाइनल आंसर इज 837.4 joule, and delta S total is positive. Delta S total is positive, greater than 0. So process is spontaneous. So we came to know whether the process is spontaneous or not by the help of delta S total. We are talking about the process being spontaneous or non-spontaneous. In thermodynamics, it is very, very important. Thermodynamics branch is very much interested in predicting whether the process is spontaneous or not spontaneous. And therefore, thermodynamics properties are used. So we have understood that yes, it is possible to predict whether the process is spontaneous or non-spontaneous
but for predicting the delta S you need delta S total. मुझे ये जब तक मालूम नहीं रहेगा मैं बता नहीं सकता हूं, और डेल्टा एस टोटल दोनों पे डिपेंड करता है, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी। यानी मुझे हर बार मुझे ये दोनों पता होना चाहिए, उसके बाद ही मैं ये बता सकता हूं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब ये तो दोनों की प्रॉपर्टी हो गई, सिस्टम और सराउंडिंग। आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। क्या मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल सकती है जो प्रॉपर्टी सिर्फ सिस्टम की हो? ओनली सिस्टम। मुझे सिर्फ सिस्टम की प्रॉपर्टी बताओ जो मुझे बता सके कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ये क्या मुझे हर बार सिस्टम सराउंडिंग? सो आई डोंट वांट दिस। आई वांट प्रॉपर्टी which will be only of the system property to predict whether the process is spontaneous or non-spontaneous, and therefore delta S is not helpful। और इसीलिए मुझे थर्मोडायनेमिक्स में इसलिए एक और नई प्रॉपर्टी की डिस्कवरी हुई और एक न्यू प्रॉपर्टी आई, क्योंकि हमें एंट्रोपी चेंज में दोनों फाइंड करना पड़ रहा है, इसलिए हमने नई प्रॉपर्टी दी है जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी। तो अब मैं बात करने वाला हूं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की। ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जन्म कहां से? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि एंट्रोपी चेंज में हमेशा हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की वैल्यूज यूज करनी पड़ती है। वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली द सिस्टम प्रॉपर्टी, वी वांट द ओनली सिस्टम प्रॉपर्टी, we don't want to go in surrounding. So to avoid this we have Gibbs free energy change. Please write down this. Now Gibbs free energy change, let us understand what is Gibbs free energy change. So the most important thing is definition of Gibbs free energy. It is defined as the free energy of the system to do useful work, and it is expressed as G is equal to H minus T into S. तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी है सिस्टम की जिससे कुछ यूजफुल काम कर सके, और फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का G is equal to H minus T into S। अभी इसमें मुझे आप बताओ H क्या होता है? व्हाट इज H? सब लोग माइक ऑन करके बोलो H क्या होता है? H H H H H क्या होता है? ओहो, H क्या होता है? H क्या होता है? सराउंडिंग। नहीं 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 नहीं, H H Enthalpy. H enthalpy है। Enthalpy. H is the enthalpy of the system. What is T? What is T? बोलो 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 बोलो। अरे यार कोई बोल नहीं रहा है। T T नहीं मालूम? Temperature. टेम्परेचर। नहीं, T is not just temperature, T is absolute temperature। T को बोलने का absolute temperature, कैपिटल T है ना, absolute temperature बोलने का, absolute temperature। और S क्या है रे? S क्या है? लकी नंबर S, लकी अल्फाबेट S। S S S क्या होता है? S क्या होता है? Entropy. Entropy. एंट्रोपी। तो ये हो गया। So how do we find the expression for the change in the Gibbs free energy? Very simple। याद रखो इसमें तीनों भी स्टेट फंक्शंस है, एंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी, इसीलिए G भी स्टेट फंक्शन है। यानी सारी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। प्लीज नोट कर लेना ये बात। Gibbs free energy is a state function. Why Gibbs free energy is a state function? Because H, T and S are state function.
जी की वैल्यू एच, टी और एस पे डिपेंड करती है, तीनों स्टेट फंक्शन है इसलिए जी भी स्टेट फंक्शन है, यानी ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, गिव्स फ्री एनर्जी। और इसके चेंज का फॉर्मूला क्या होगा? इसके चेंज का फॉर्मूला होगा बहुत सिंपल, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो आप लिख लेना एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इज गिवन एज, दो फॉर्मूला दिया है, दोनों में कोई मुझे फर्क बताओ, क्या फर्क है दोनों में? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज अ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन में एक छोटा सा फर्क है, कोई मुझे बताओ ये फर्क क्या है? दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है? Sir, one is standard and other is not standard. सुपर्ब आंसर, क्या बात है। एक जगह पे नॉट लगा दिया मतलब स्टैंडर्ड, मतलब 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर। अगर स्टैंडर्ड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहेगा तो नॉट लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मैं बोलूंगा तो डेल्टा जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोलूंगा तो डेल्टा जी नॉट, बस स्टैंडर्ड वर्ड का फर्क है। और स्टैंडर्ड आने से एक प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो जाता है। तो ये हो गए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Yes. Relationship between delta G and delta S total. Now try to understand. मुझे हर बार डेल्टा एस टोटल मालूम करना पड़ता था, और डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव आता है तो मैं बोलता था कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब मैं डेल्टा एस टोटल का मैं रिलेशन फाइंड करूंगा डेल्टा जी के साथ, तो हर बार मैं डेल्टा एस टोटल फाइंड नहीं करूंगा, डेल्टा एस टोटल की जगह मैं डेल्टा जी से कंपेयर करूंगा। प्लीज बी एवरीवन पे अटेंशन, नेक्स्ट 5 मिनट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा काम आप स्टॉप कर दें थोड़ी देर के लिए और पूरा ध्यान यहाँ पे दें कि हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी and delta S total. Okay,